Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon across the globe. So today's session is one of the most important session because as always, Best International is trying to bring some, problematic issues on upfront with some solutions through our experienced speakers and panelists. So today, we have one of the most energetic, young, experienced professional, safety professional, I would say even QHSE professional. So let's welcome to our guest today. Assalamu alaikum, Wasim. वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं भैया how are you how's Alhamdulillah. everything hello Alhamdulillah. who's listening us and watching us alhamdulillah how's Alhamdulillah. everything How's your life, mashallah? How's things are going on, mashallah? Really pleasure to have you on board today live, mashallah. So how's alhamdulillah life going on? actually this is also a big moment for me also because as a younger brother you are my elder brother and give me that opportunity to share my experience and knowledge which can be supportive to others as well. So Inshallah. hopefully that session Inshallah. will be inshallah very effective inshallah. And let me tell to the audience, he just arrived back from the office and immediately he joined me, mashallah, live. So, okay, so let's start our journey today. Wasim, today's our topic is behavior-based safety, It's one of the most complicated topic, concerning to and linking with the safety culture actually. And I'm sure millions of safety professionals will be listening today, inshallah, to us, or maybe later on they will be watching our video. So let's bring some energy and some kind of productive, solutions how the BBS can help to every sort of company, either at a lower level or middle level, or they are the global brands even. Because what I hope you also, since you have visited several countries of the world, so you already analyze, people, sometimes companies have strong equipment and they have, bonanza of systems and procedures well implemented even. But on the other side, even their workforce is being trained every day through toolbox meetings and plenty of live trainings, face to face or even remote online as well. But still, the question is why still, we are having accident. That is why Best International selected this topic, BBS, behavior based safety. And you are a very much inspirational professional, mashallah, because since you are working with all root levels, like you are very much involved with machine operators, you are very much involved with security department, even the the floor foundation managers, whoever is working, not only with the top management. So that is why it's really pleasure to have you on board, mashallah. So how are you gonna elaborate, first of all, what is behavior based, what is the importance of behavior based safety, why it is important? Yeah, alhamdulillah, thank you. And first of all I want to explain to the all our audience and all our friends who will watch us actually about you and me also first. Okay, because everybody may see some new comments, new our friends, they don't know we are a brothers. Okay, Ishtiaq is my elder brother, he is my inspiration and he is my teacher, he is my best friend as well. Okay, so alhamdulillah, we learn together many things, we work together in many companies as well, we have a very good experience. And I can say I'm very lucky to have you as an elder brother, alhamdulillah. So this is a big name I can say from Allah's side, alhamdulillah, because we have a very good elder brothers, younger brothers as well, alhamdulillah. So yeah, now we come on your question. As per my experience, I can explain and elaborate very shortly any the behavior based. What is behavior based? I can say this is a psychologically. I can say psychologically act. We can say to improve यानी employees behavior. We can say that this is the main thing कि उनका जो बेसिकली जो रूट पे जो लोग हैं उनका बिहेवियर हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके लिए ही सिस्टम जो है उसको फॉलो करना पड़ता है ABC क्या है एक्टिवेटर्स behavior and consequences इसकी एग्जांपल्स हम further even the same in one of the moment you mentioned you have a psychiatrist, somebody is coming on floor और वो पूरा evaluate कर रहा है
कि सेफ बिहेवियर कितने लोगों का है, अनसेफ बिहेवियर कितने लोगों का है, इवन एजुकेशनल बैकग्राउंड, इवन कल्चरल बैकग्राउंड्स. So how you guys made this analysis, because while doing even risk assessment, Yeah. especially during your European visit, I would surely love to hear, what exactly you learned through different countries while you visited a lot of companies actually. Yeah. Actually, let me explain you the behavior base when it was started. Then I'll come to your question as well. Because when I was in Croatia, so we have that topic, very hot topic, by the way. We were 32 professionals there. So we spent almost I think 6 hours only on behavior basis. So Okay. they started यानी behavior based safety कब आई, कहाँ से आई, who took initiative firstly. बेसिकली ये जो था ये 1968 से 1972 में ये स्टार्ट हुआ. और ब्रे डैनियल एंड वांडा मायरेस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे रिसर्च करना शुरू किया. तो आप जैसे हम देखते हैं कि हाउ यानी हु वाज अलाउइंग टू द एम्प्लॉइज दे शुड हैव यानी ब्रेक टाइम, दे शुड हैव यानी वर्क परफॉर्मेंस. ये सारी चीजें बिहेवियर बेस्ड की थिंकिंग के बाद ही हैं. तो उन लोगों ने ऐसा किया, उन्होंने कहा कि यार जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, अदरवाइज पहले क्या होता था, लोग शॉर्टकट्स ले रहे थे, एवरीबॉडी वाज हरी, दे वांट टू फिनिश देयर ऑब्जेक्टिव, दे वांट टू फिनिश देयर टास्क एंड लेट्स गो टू होम. उसके बाद उन्होंने देखा कि इंसिडेंट बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों को फैटेलिटीज हो रही हैं. तो ये चीज को जो है उन्होंने फिर क्या किया कि इस पे रिसर्च करना किया. और कैसे उन्होंने रिसर्च किया, इसमें अगर आप देखें हॉथोर्न स्टडीज हैं, अगर उसको भी आप स्टडी करें तो उसमें सारा बिहेवियर बेस के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है जो था. और ये जितनी भी चीजें, जैसे आप समझ लें कि अगर हम साइट पे काम कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, जो हमें एक गुप अंधेरी साइट दी जाती है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है लाइटिंग. ठीक है, सबसे पहले तो उसकी लाइटिंग उसमें होनी चाहिए. फिर उसके बाद आप समझ लें कि वर्किंग आवर्स एम्प्लॉयज के लिए. फिर आप समझ लें कि जितने भी इंटरवल्स हैं एम्प्लॉयज के लिए, वो सारी चीज़ें यहीं से बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी से ही निकली थी कि ये चीज़ें हम लोगों को देंगे. ठीक है, और हम इनका बिहेवियर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे. देन we can save their lives, we can stop the fatalities, we can save LTA rate. We can improve quality or productivity even, and customer satisfaction would also be there. So ये जो basic facilities हैं, ये आपका कहने का मकसद ये कि जिन कंपनीज में एम्प्लॉइज को बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, वहां पे बिहेवियर आपको वो आउटकम नहीं देगा जो कि एक बड़ी अच्छी कंपनी में मिल रहा होता है. जैसे सऊदी अरामको में, आई एम श्योर यू आल्सो बीन इन्वॉल्वड एंड डीलिंग टू different Aramco professionals through some different projects. लेकिन मेरा जो experience है उसके accordingly Aramco जो है they facilitate a lot, so automatically दिल कहता है वहां पे safety को follow करने का. Nobody wants to. तो इस point of view से I totally agree कि हमारे पास पूरा जो facilitation जो structure है, जो basic facilities हैं, like इसकी example आप अगर अपने, जैसे आपने एक fight back किया था एक issue आपकी रेजिडेंशियल कंपाउंड्स में, यू डिडंट एक्सेप्ट एक्चुअली कि 4 बंदे भी एक रूम में रहें, तो आपने उसको भी जनरलाइज इसी वजह से किया कि किस तरह हम अदरवाइज दे विल चेंज देयर बिहेवियर एंड दे विल नॉट लिसन एक्चुअली. तो ये जो सेफ बिहेवियर की प्रोडक्शन है, इसमें मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आप किस तरह मैनेजमेंट को किस तरह मोटिवेट करते हैं कि एट द एंड दीज आर रिसोर्सेज एक्चुअली. Yeah, actually the first thing is कि जो हमारी top management है, they are very committed. First thing, in which company now I am working, to be honest, they are our general manager, our operation director, everybody is committed. So I just give them the first thing, safety starts with me. Safety is everyone responsibility. So yani we have analyzed our data almost 3 years. In 3 years, we have, yani before joining this company, we have almost 19 injuries, LTIs. When I joined this company, I make my objectives. We have to reduce minimum 90% LTIs, example. So until now, almost 5th month in this company, and we don't have any LTA. There is even no any
major incident, nothing. Alhamdulillah, small near misses we found, because that foundation, which is I recommend to all our staff to work on unsafe condition, unsafe act, to find out the near miss. तो ये सारी चीजें जो हैं सारे मिलके, और उसके ऊपर के जो बंदा जितने नियर मिस और अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन रिपोर्ट करेगा, उसको वीकली हम प्राइज देते हैं। तो वो प्राइज जो है वो भी हमने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द हु फाउंड द नियर मिसेस, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द HSE, बेस्ट एम्प्लॉय इन द एनवायरनमेंट, इन 3 सेगमेंट में हम लोगों ने अभी जो है उनको प्राइज देना शुरू किया है ऑलमोस्ट 1 मंथ से। तो वीकली हम जो है TBT टूल बॉक्स स्टॉक करते हैं साइट के ऊपर और ऑफिस में भी। ऑफिस में भी हम देखते हैं कि हमारा कौन सा एम्प्लॉय, हमारा कौन सा स्टाफ मेंबर, इवन मैनेजर्स हु फॉलो द सेफ्टी, हु गिव अस यानी गुड इनपुट ऑन सेफ्टी, हु फाइंड आउट द नियर मिसेस। तो हम उनको सबको यानी रूट से टॉप टू बॉटम सब लोगों को हम लोग जो है इनकरेज और मोटिवेट कर रहे हैं सब। लेकिन इससे पहले मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी में, और प्रीवियस का भी मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ कि हमने बिहेवियर बेस्ड पे काम करना शुरू किया। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक साइट के ऊपर बैरिकेशन लगाई, वहाँ एक्सीबिशन चल रही, तो वो एक्सीबिशन के ऊपर हमने बैरिकेशन लगाया, जर्सीज लगाई, उसके ऊपर पोस्टर्स लगाए, लाइटिंग लगाई। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों ने एडजस्ट करना है और सुबह जाके देखना है तो हर चीज उलट पुलट है। और क्लाइंट ने विजिट करना होता था अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock, तो वो जब भी देखते हैं कि यार ये आपकी जर्सीज गिरी हुई हैं, आप देखें लाइटिंग किसी ने कट कर दी है, कोई बल्ब निकाल के ले गया हुआ है, ये जस्ट ये ऑनेस्ट एक्चुअल फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो मैं फेस करता हूँ, मतलब साइट के ऊपर हम लोग फेस करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि सब लोगों को जितने भी सेफ्टी वाले हैं, QHSE प्रोफेशनल हैं, पे अगर हम रूट पे, तो बहुत सारी चीजें इस तरह की, जैसे कि हम पोस्टर्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, निकाल के फेंकते हैं एम्प्लॉइज। ये सारी चीजें हम लोग जो थे बियर कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, इसको हाउ वी कैन कंट्रोल, मैंने अपने PM से, प्रोजेक्ट मैनेजर से सारी टीम को बुलाया, हु इज रिस्पॉन्सिबल, वी नीड टू फाइंड आउट। सो द सेम थिंग जो थी, हमने ABC मॉडल उसमें और प्लान डू PDCA साइकिल भी हम उसमें हमने देखा कि हम लोग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे सब ने, इंजीनियर्स ने, किसी ने कहा वहाँ कैमरा फिक्स कर दें, किसी ने कहा कि वहाँ पे मॉर्निंग में भी एम्प्लॉई आके चेक करे और जाने से पहले भी चेक करें। लेकिन हमने उसका एक्शन पहले डिफाइन किया कि हम लोग ये तो पता करें कि कौन है। हेलो, आपकी वीडियो सेम नजर नहीं आ रही, सेम योर कैम एक्चुअली। let me check it. Okay. No, it's okay. No, it's okay. तो हमने क्या किया, सबसे पहले कि हमने एक्शन उसके ऊपर डिफाइन किया कि हु विल बी द मेन पर्सन, हमें वो आदमी को पकड़ना है जो ये करता है। हम लोगों ने क्या किया, आई वाज ऑन द साइट अर्ली मॉर्निंग, लाइक यू कैन से राइट आफ्टर फजर प्रेयर, मी and my PA and our 2 engineers was on the site. We saw our 3 employees, they were reaching on 6 o'clock. We were on the roof, and they were kicking to the jerseys and they are, pushing to the jerseys and khalas. We catch them anyhow. We bring them and we said them, why you were doing this? So हम लोगों ने उनको एनालाइज करना शुरू किया। So sometime 3 लोग थे, तीनों में से एक ने बताया कि उसको प्रॉब्लम है घर की और मुझे घर से है, ये है वो है, आप लोगों को जो है मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। दूसरे ने कहा कि आप मुझे काम बहुत ज्यादा देते हैं। तीसरे ने कहा कि मुझे अपने इंजीनियर से प्रॉब्लम है, वो हमें अब्यूज करता है, इस तरह की चीजें उसने बताई। तो अब हम लोगों ने डिफाइन किया कि इनका एक्शन हम क्या लें, कैसे इसको मतलब हम लोग करें। तो उन लोगों को हम लोगों ने एक चीज बताई कि और बताओ एम्प्लॉयज में और कौन क्या करता है, कैसे है। तो उन्होंने मजीद बताया कि सब लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, इंजीनियर से सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर पुशिंग अ लॉट, ठीक है। और हमें शॉर्टकट्स को पकड़ने की कहते हैं कि आप जल्दी जाओ, ऊपर जाओ, ये काम कर दो, कटिंग करो, वर्क परमिट की जरूरत नहीं है, आप लोटो को अप्लाइड मत करो, हम सेफ्टी वाले को देख लेंगे। ये उन्होंने ब्लेम शेम शुरू कर दिया। तो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने इमीडिएटली वी इन्वॉल्व टू आवर HR। ओके, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप ये इनकी इन्वेस्टिगेशन हमने की है, ये चीजें इन्होंने बताई है, नो दिस इज योर टर्न, एज पर एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट एक्शन यू कैन टेक, प्लीज गो अहेड एज पर आवर एज पर आवर प्रोसीजर।
तो हमारे एचआर वालों ने दोबारा उनकी इन्वेस्टिगेशन की, अगेन सेम उन्होंने ये चीजें बताई। तो जितने हमारे इंजीनियर्स थे उसमें आप देखें कि 3 हमारे इंजीनियर्स निकले जो वाकई ही लोगों को, एम्प्लॉयज को पुश करते थे और अब्यूजिंग करते थे। ओके। जो जनरल मैनेजर था उस तक ये बात गई, उसने फिर आके साइट के ऊपर ये सिंपल कहा, एक पॉलिसी हमने साइन की है, स्टॉप अनसेफ एक्ट, तो उसके अच्छा। ऊपर एम्प्लॉयज के सामने साइन करके उसने कह दिया कि ये आज से आप सब लोग ऑथोराइज हो। इवन मैं ही अच्छा। आपको क्यों ना कहूं कि ये काम आपने ऐसे ऐसे जल्दी में कर दो, शॉर्टकट्स ले लो और ये कर दो, आपने नहीं करना। और ओके। कोई भी आदमी, इवन सेफ्टी वाला है, मैनेजर है, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर है, इवन क्लाइंट है, कोई भी आपको ये चीज बुरी कहता है, कोई अब्यूज देता है, सो प्लीज इमीडिएटली रिपोर्ट टू अस। उसने सबको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमने उनका नंबर भी टॉप पे रखा है, जनरल मैनेजर का, और क्लाइंट के ओके। जनरल मैनेजर का भी एज वेल। तो ये चीजें जो है एक्सीलेंट। मेरे ख्याल है इसमें भी है, जो लोगों का जो बिहेवियर, और लोगों को ये मोटिवेशन मिली कि लीडरशिप डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई है, सो मीन दे आर तो गिवन। लीड बाय एग्जाम्पल, ये वसीम, इस पे मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो व्हाई पीपल लव टू टेक शॉर्टकट्स एक्चुअली, कि इसकी अगर हम रूट कॉज एनालिसिस आज अपनी ऑडियंस के सामने ट्रांसपेरेंटली, बिकॉज सिंस वी बोथ आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो वी कैन टॉक एनीथिंग व्हाटएवर ऑनेस्टली वी हैव टू शेयर विद आवर ऑडियंस, सो व्हाट डू यू थिंक, what are the real root causes why people love to take shortcuts? I mean, is it like habitual kind of behavior they have, or is it kind of unintentional behavior, or you believe it's a conscious behavior कि they have no idea, you know, what exactly they have to do? जैसे आपने एक फैक्टर बताया कि घर की टेंशन बहुत ज्यादा है, काम का लोड बहुत ज्यादा है, इसके अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स आपने अभी तक नोट किए हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, why हाँ, people love to take shortcuts? अगर आप देखें तो आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव यानी हैंडल मैनी LTAs, मैनी बिहेवियर बेस्ड इश्यूज, you know, unsafe act condition, near misses investigations, even another quality related NCRs as well. So we actually जो मेन चीज है कि बहुत सारे जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सेफ्टी को जो है केयर नहीं देते, बहुत ज्यादा जो है Okay. केयरलेस बिहेवियर उनका होता है। यानी इफ दे आर वर्किंग एट हाइट, वी गिव देम प्री टास्क ब्रीफिंग, okay, before start this task, we give them a full awareness, all the risk assessment we share with them, we give them all the TBTs as well. So जब वो और उनको वो भी बता दिया कि भाई ये आपने पहनना है, बॉडी हार्नेस पहनना है, इसके फायदे क्या है, पीपीज आपने पहनने, इसके फायदे क्या हैं, आपने ये आपके लिए है, कंपनी ने आपके लिए ये 100 रियाल का बेल्ट है, 40 रियाल का हेलमेट है, 10 रियाल की गोगल्स है, ठीक है, 50-70 रियाल के शूज हैं, ये सारे कंपनी ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। तो इसका क्या पर्पज है कि वो चाहते हैं कि आप सेफ रहें, आप सेफ रहेंगे, आपकी फैमिली सेफ रहेगी। लेकिन इसके बावजूद हम कह के जाते हैं, तो पीपल क्या करते हैं, एम्प्लॉयज क्या करते हैं, दे रिमूव एवरीथिंग, हेलमेट, और अपना काम शुरू कर देते हैं So do शॉर्टकट। you think it's a human behavior, is kind of a human nature? We can say it's kind of human nature, but mostly another thing जो मोस्टली जो लोग करते हैं वो ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से ईगो लेवल उनका होता है। वो ये समझते हैं कि सेफ्टी वाला हमें कह रहा है कि भाई आप ये पीपीज पहनो, उससे उनकी ईगो हिट होती है। और मोस्टली हमारे पाकिस्तानी इंडियन, टू बी ऑनेस्ट एंड Okay. फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑल आवर बांग्लादेशी, आई कैन से एशियन पीपल्स, ओके, उनको ये लगता है कि ये हमारी ईगो हिट कर रहे हैं, कि हमें कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि आप ये पहनो, आपने नहीं पहना, और अगर हमने किसी को वार्निंग दे दी है तो वो मजीद और ज्यादा जो है उसको फॉलो करने के बजाय और किसी चीज में जाके तो मिसबिहेव दिखा देगा। कई दफा तो तो हमने ये आपने इन तमाम बिहेवियर्स को इम्प्रूव किस तरह किया है, मतलब आपने इन तमाम बिहेवियर्स, बिकॉज आई नोटेड, यू नो, even I visited one of your site, and you know, especially mining industry, so everything was perfectly, you know, like housekeeping, the behavior of people were very much excellent, including security guards, you know, they were noting down every individual, especially because of this COVID-19. आपने मतलब, और ये मैं चाहता हूँ कि आज हमारी ऑडियंस जरूर सुने कि किस तरह हम जो इम्पॉसिबल चीजें हैं उनको भी पॉसिबल कैसे बना सकते हैं, बाय चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है।
इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को फ्रेंडली होना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है। एक चीज तो ये है, सिस्टम हमें बनाना है एक साइड पे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि पेनल्टी सिस्टम हो गया या मोटिवेशन सिस्टम हो गया, वो तो रहेगा ही साथ में। लेकिन एम्प्लॉयज को आपसे डर नहीं लगना चाहिए, मेरा ये मानना है। एम्प्लॉयज खुद आपको कहे कि सर वहां पे ये गलत हो रहा है, सर मैंने ये देखे 4 चीजें पकड़ी हैं, और वो व्हाट्सअप आपको करे कि सर ये देखे ये चीजें मैंने देखी हैं, तो हमारा सुपरवाइजर हमें पुश कर रहा है। तो अगर तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए तो हमें सबसे पहले मोटिवेशन सिस्टम, दूसरी चीज है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है इनहेंस करनी है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं कि उनकी जो जॉब है उसको इजी कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कर सकते हैं उनको वो रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करें। उसके अलावा जो है मैनेजमेंट की तरफ से उनको मोटिवेशनल कोई गिफ्ट जो सिस्टम है बेस्ट सेफ्टी एम्प्लॉय का, वो हम वहां पे लॉन्च करवाएं। तो सबसे और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मेरे ख्याल में है कि ट्रेनिंग्स एंड इम्प्रूवमेंट जो है टाइम टू टाइम वी हैव टू गिव टू आवर एम्प्लॉयज फॉर देयर मोर इन हैंड। क्योंकि आज हमने दी है, देखे ट्रेनिंग, कल वो भूल जाता है आदमी, परसों भी भूल जाता है, 2 दिन बाद हम लोगों के माइंड में और टेंशन चल रही होती है, घर की चल रही होती हैं, दोस्तों की चल रही होती हैं। सो ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ चल रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये हम सारी चीजों का एक ग्रुप बना के और मैनेजमेंट को, स्टाफ को, सबको साथ लेके चलें और एम्प्लॉयज को ये कॉन्फिडेंस दें कि आप जो बोलना चाहते हैं आप बोलें। मोस्टली हमारे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जब आप पूछते हैं उसके मैनेजर के सामने या उसके इंजीनियर्स के सामने कि यार तुमने क्या गलत देखा, ही विल नेवर एवर एक्सप्लेन यू। तो मेरा ये भी एक मानना है कि एम्प्लॉय से मीटिंग करता हूँ तो मैं अकेले में करता हूँ, उन तो हम सबको मैं बुला यहाँ से ये एनालाइज कर सकते हैं कि मैनेजर की जो प्रेशर है उसकी वजह से भी, मैनेजर को अननेसेसरी खुश रखने की वजह से भी पीपल लव टू टेक शॉर्टकट्स, कि मेरा बॉस मुझसे हैप्पी रहे, मेरा सुपरवाइजर मुझसे हैप्पी रहे, मैं हीरोइज्म अपनी दिखाऊं, मैं बताऊं कि देखो लेड टूटी भी हुई है फिर भी मैंने काम चला लिया है, ड्रिल मशीन अच्छी भी नहीं है फिर भी मैंने काम चला लिया है। सो आई टोटली एग्री बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स, यू नो। इसीलिए, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग कंपनीज नहीं छोड़ते बल्कि बैड बॉसेस को छोड़ देते। आई टोटली एग्री विद दैट। और दूसरा ये है कि जितने हमारे लोग हैं बेसिकली, जब मैं उनसे पूछता हूँ अकेले में, सो बिलीव मी दे गिव मी अ कंप्लीट पिक्चर ऑन द साइट। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरी जो हैबिट है, मैं अपनी आपसे नेचर जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि पीपल इस पे एग्री होंगे, किसी को कोई इस पे कोई भी क्वेश्चन या कोई है, सो प्लीज इवन दे कैन एनहांस आवर नॉलेज एज वेल। तो वो क्या करते हैं, मैं लोगों का क्या बनाता हूँ, एक ग्रुप बनाता हूँ जो मेन की पर्सन है, इवन वो सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, even he is working from last 10 years, I got his number and I put in one group, यानी employees group, improvement group I can say। तो वहां पे उस ग्रुप का इतना फायदा है कि मैं साइट का वीकली भी विजिट करूं, लेकिन मुझे डेली इनपुट आ रही होती है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आज यहाँ पे ये प्रॉब्लम, इवन के एनी नियर मिस हुआ है या कभी कोई इंसिडेंट भी हुआ है तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता है। Excellent. तो So that means your reporting structure should be strong enough कि अगर आप सेफ्टी लीडर हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो इतना ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होना चाहिए एम्प्लॉइज के साथ कि दे वुड लव टू शेयर एवरीथिंग विद यू, so then you can have an idea कि what exactly you have to do। और उनका बिहेवियर हम कैसे चेंज करते हैं, यही चीजें। अगर आप देखें, अगर मैं उनके साथ हर टाइम पे लड़ता रहूंगा या मेरी टीम, मेरे सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर जाके लड़ते रहेंगे, तो ये चीज जो है वो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव ही होगा। एग्जैक्टली। इवन मैं हूं, मैंने अगर पॉजिटिव दिखाया है और अगला नेगेटिव भी दिखा रहा है, इट्स ओके, लिटिल बिट आई कैन से मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा या 50% पॉजिटिव आएगा, लेकिन फिर भी हम उसको चेंज कर सकते हैं बिकॉज आई एम पॉजिटिव। अगला बंदा कितनी दफा नेगेटिव रहेगा, उसी दफा, तीसरी दफा उसको खुद शर्म आएगी। इसमें सेम एक इंग्लिश की कहावत है जो मैं अपनी ऑडियंस के सामने और आपके सामने भी जरूर बोलूंगा कि सक्सेस विद नेगेटिव एटीट्यूड बेसिकली इज कॉल्ड लक। कि कई बार होता है कि कंपनीज नेगेटिव बिहेवियर से भी कामयाब हो रही होती है लेकिन वो उनकी लक है, बट सक्सेस विद पॉजिटिव एटीट्यूड इज कॉल्ड अचीवमेंट। तो जो अचीवमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से आती है।
आपने देखा होगा कई कंपनीज वो शॉर्टकट्स लेके भी प्रोजेक्ट्स तेजी से मुकम्मल करके कस्टमर की शाबाश भी ले जाते हैं, लेकिन वो एक उनकी लक क्या है कि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि जिसकी वजह से पूरे का पूरा बिजनेस ठप नहीं हुआ। तो ये आई टोटली एग्री कि ये इंतहाई जो है ना, सो दैट मीन्स इट्स अ टीम वर्क कि एवरी ब्रिक हैव अ वैल्यू, कि जैनिटर से लेके जनरल मैनेजर तक हर बंदे को अपना सेफ्टी मैनेजर खुद बनना पड़ेगा, उसको ये बिहेवियर अपना सीधा करना पड़ेगा। तो आप अपने जो आपके जनरल मैनेजर्स हैं, काइंड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हाउ फ्रीक्वेंटली दे विजिट योर साइट्स एक्चुअली? एवरी इवन आप सऊदी कस्टम्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी आप काम कर रहे हो, तो वो लोग कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं? बिकॉज डे। एट द एंड कस्टमर इज आल्सो रिस्पांसिबल। Now the Saudi Custom and Ministry of Finance, we have many projects right now. Ministry of Finance, Saudi Custom, Ministry of Labor. Then we have a project at airport now. Another project in Khubar Tamam Airport also. They have a small project also. So all the government they are following our. I can say they are following ISO standard mostly now. जितने उनके हैं पीएम हैं, उनके क्यूएचएससी मैनेजर हैं, उनके एनवायरमेंटल मैनेजर्स हैं, दे आर कमिंग, दे आर स्टेइंग रेगुलरली ऑन द साइट। और उनके उनके अगर हम बीओक्यू और उनके जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें वो भी मेंशन करते हैं कि आपका क्यूएचएससी मैनेजर, आपके सेफ्टी इंजीनियर, आपका एनवायरमेंट मैनेजर, वो भी हमें 8 आवर्स साइट पे चाहिए। तो ये एक जो चीज है मेरे लिए बड़ी टफ होती है भाई, बिकॉज they put me and I have to go to this side 2 days after I have to go to another side। तो ये एक चीज जो है मेरे लिए चैलेंजिंग होती है। मेरी टीम वहां पे वेरी सपोर्टिव है, हर जगह पे हर साइड पे मेरे 3 से 4 सेफ्टी ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स होते हैं। तो वो जो रियली सपोर्टिव, वेरी गुड प्रोफेशनल, आई हैव अ वेरी गुड टीम अल्हम्दुलिल्लाह। So because you are you know they feel comfortable with you basically, because अगर आप अच्छे नहीं हो तो nobody would be cooperative with you। तो ये credit goes to you माशाल्लाह कि आप उनके साथ इस तरह आपने वो एक केमिस्ट्री अपनी मिक्स कर ली हुई है कि they love to work with you। और ये भी एज अ सेफ्टी लीडर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि ऐसा ना हो कि आप सेफ्टी लीडर तो हो लेकिन हर कोई नफरत ही कर रहा है आपसे, इवन दो कि लीडर से हर कोई उसे लाइक भी नहीं कर सकता 100%, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो मेजोरिटी ऑफ कम्युनिटी है या एम्प्लॉइज ऑफ वर्क फोर्स है, दे शुड लव टू वर्क विद दैट पर्टिकुलर सेफ्टी लीडर। I learned from you, from especially as a leader. So you are, as I already explained, you are my inspiration, you are my teacher as well। So all the mostly basically you are talented man, I'm nothing। basically you have guts to improve yourself, you are a fast learner and very passionate learner mashallah, and that is why you know mashallah you are getting success day by day, and this is where I feel pride alhamdulillah alhamdulillah। So वसीम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो आपके जो कह लें कि जो बजटिंग है, वसीम आपकी वीडियो का इशू है, यू आर नॉट विजिबल। जो बजटिंग का इशू है, हाउ यू गेट अप्रूव्ड, यू नो, बिकॉज बीबीएस मींस कि जब आप इस पे काम करोगे तो ये एक एलिमेंट है सेफ्टी कल्चर का, और सेफ्टी कल्चर बनाने के लिए यू हैव टू चेंज एनवायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, risk assessment, auditing systems, customer requirements to be fulfilled, a lot of money is involved, even fire management system, a lot of things। so इस सारे पैनल में how do you get approval of your budget actually? कि अगर आपने कहा है जी मैंने मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स देनी है एम्प्लॉइज को, तो मुझे इतने हजार या इतने लाख रियाल चाहिए 1 साल के लिए, सो हाउ डू यू गेट दैट अप्रूवल एक्चुअली? जैसे आपने कहा मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस पे ट्रेनिंग चाहिए, आपने लास्ट टाइम हमसे इवन प्रपोजल ली कि जी प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन को भी हम जो है वो सेफ्टी पढ़ाना चाह रहे हैं। सो हाउ यू गेट अप्रूवल लाइक काइंड ऑफ अ बजट, यू नो, फ्रॉम योर मैनेजमेंट? एक्चुअली our management, they have a JV from France, joint venture with France company। so our France partners, they are most they are focusing on safety because they know their goodwill is more important। so ये सारी जो चीजें हैं वो वहां से भी इनपुट आ रही होती है, और हमारा जो टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे है दे फॉलो। और हम लोग कैसे हम लोग बजट करते हैं, बजटिंग हम लोग कैसे करते हैं, आप देखें कि स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट पे एक ये प्रॉब्लम क्या होती है, वो ये होती है कि हम लोगों ने कॉस्ट को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है साथ में।
कि हमारी कॉस्ट इधर उधर नहीं होनी चाहिए, जो हमारा है जिसमें जिस तरह का हमारा BOQ फाइनल हुआ है, जो कॉस्टिंग हमारी है, उसी को हमने इवन के हमने उससे ज्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक वहाँ सेफ्टी का जो होता है वो हम लोग अपने बजटिंग जैसे हम करते हैं। एग्जांपल हमने देखें, अभी हमने पकड़ा 8 मिलियन रियाल का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करने से पहले हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वही बता देते हैं, उन्हीं की बेस पे हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट अपनी सेफ्टी का बजट जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे हम बिडिंग में जाते हैं, जैसे हमारा अप्रूवल हो गई और कॉन्ट्रैक्ट में अप्रूवल करने से पहले ही हम लोग देख लेते हैं कि ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बरिंग का ये बजट है, ये सारा होगा। सेफ्टी का सेपरेटली होता है, उसमें मैं देखता हूँ कि क्लाइंट कह रहा है जैसे उसे फायर फाइटर्स अप्रूव चाहिए जी, फर्स्ट एडर चाहिए जी, स्काफोल्डिंग इरेक्टर चाहिए उनको, ठीक है, फ्लैगमैन चाहिए। फिर उसके बाद हमें फैसिलिटीज चाहिए एम्प्लॉयज के लिए, जैसे उनके लिए पीने का पानी है, उनके लिए मेस वहां पे बनवानी है, वो कहाँ पे बैठ के खाएंगे सारा, मतलब जिम तक भी एक लास्ट प्रोजेक्ट्स में आपने बताया था कि जिम क्लब तक यू हाउ यू गेट अप्रूवल ऑफ सच सो वो सारी क्लाइंट ने जो लिखा होता है, आई विल मेक इट, we get the quotation, 3-4 quotation through our procurement, and then we made our budget openly. Okay, these 3 quotation and these I need a 500,000 रियाल, 1 million रियाल in only for safety. So वो उस पे क्या होता है कि I got approval from the top management directly. I couldn't involve to director or this one, directly to the general manager and our CEO from France. I sent them that my plan, this is the as per this client requirement, we need to do this. तो वो क्या करते हैं, वो अप्रूवल देते हैं, इवन वो 10% एक्स्ट्रा देते हैं, टू बी ऑनेस्ट, because they are good year. So that means you have open budget for safety. If they are giving you extra 10%, that means kind of an open budget for safety. Brilliant, yeah. Brilliant. तो ये that is why you are getting more projects actually. Yeah, ये चीज जो है ये बहुत बेनिफिट देती है। और एम्प्लॉयज को फिर हम इसी में से हम लोग गिफ्ट सेशन का, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मंथली हम एक गैदरिंग करते हैं। अगर हमने सेफ मैन आवर्स अचीव किए, एग्जांपल आप समझ लें कि 50,000 सेफ मैन आवर्स, 100,000 सेफ मैन आवर्स हमने अचीव किए हैं, तब हम क्या करते हैं, गैदरिंग करते हैं आपस में विद एम्प्लॉयज, आवर टॉप मैनेजर, डायरेक्टर, इंजीनियर्स। Even now we have a corona, actually due to corona we pay them just only, I can say 50-50 रियाल to take their lunch. Before हम क्या करते थे कि एक लंच का हम बुफे, ओपन बुफे सिस्टम मंगवा लेते थे और सबके साथ हम लंच करते थे, और उसी में हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द बाई एनुअल, मंथली हम लोग अनाउंस करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये बिहेवियर को चेंज करती हैं, ये लोगों का माइंड चेंज करती हैं कि यार कंपनी हमारे लिए क्या कुछ कर रही है और हमारे सुपीरियर्स हमें कितना देखें वैल्यूज दे रहे हैं और सेफ्टी को कितना फोकसिंग कर रहे हैं। सो वी शुड हैव टू बी फॉलो एटलीस्ट, इट्स नॉट इजी, यानी कि वो 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इट्स टुक लॉन्ग टाइम, मे बी द 6 month, सम टाइम 1 year। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हु इज द बैड इन द सेफ्टी स्पेशली। तो या तो हम उनका साइड चेंज कर देते हैं एक साइड से दूसरी साइड, या हम उनको, आई कैन से टू बी ऑनेस्ट, वी फायर देम 6-7 employees, they were very very worst. Even after training all our efforts, they were doing the same. We gave them a first warning, second warning, third warning, even penalty 1 or 2. So at the end, our management, we together, we said, okay, forget. Even one is very old supervisor. He was working from last 22 years to onward. Whenever my safety officer have talked to him, he said, I'm working from last 22 years. Nothing was happening. So I don't need to follow safety, right? Yeah. So इस तरह के इनको हैंडल करना थोड़ा टफ होता है। तो हम लोग फिर यही फाइनल डिसीजन है, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके तो हम लोग इनको साइडलाइन करते हैं। उससे क्या होता है कि अनदर एम्प्लॉइज को हम बताते हैं, फिर ओपनली बताते हैं कि वी फायर्ड देम नॉट ड्यू टू कोरोना, नॉट ड्यू टू बिजनेस, नो, बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी। और ये सेफ्टी का वो उनको हमने वार्निंग दिया, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, ड्यू टू दैट रीजन वी फायर देम।
तो ये सारी वसीम, चीजें। आपने बताया था कि even you give some encouragement and training to your drivers, whoever, even the company managers have their own car, still you Yeah. give them some motivation कि उन्होंने रोड पे कैसे सेफ रहना है, and how they gonna, कि कोई eating, drinking, smoking कुछ नहीं करना, how you motivate them actually, because people sometimes they have luxury car like Lexus or GMC, or so their behavior is sometimes out of control. So in such a scenario, how emotionally you gonna train them, and what formula you utilize to give them some insight कि उनकी life कितनी अहम है on the job and even off the job. Yeah, actually, if you remember, I have very good videos, by the way, on road safety. So हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारे ड्राइवर्स का एक एरिया है, प्रोक्योरमेंट में एक ऑफिस है जहाँ पे जस्ट ड्राइवर बैठते हैं, ठीक है। Okay. वहाँ पे हम लोगों ने एक बड़ी एलईडी लगाई हुई है जिसमें 72 इंचेस की एलईडी है, जिसमें हमने एक वो ऑटो रिप्ले की जो है ना